ఎస్ నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు సురేష్ హిందీ అకాడమీ. మరి ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా తెలంగాణ జేఎల్ పేపర్ 2 ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డిగ్రీ సిలబస్ అండి. డిగ్రీలో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్, ఫస్ట్ ఇయర్లో సెమిస్టర్ 1 సెమిస్టర్ 2 ఈ రెండు సెమిస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్లో ఉన్నటువంటి కవి పరిచయాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. నా వెనకాల కనిపిస్తున్నటువంటిది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క ఫ్రంట్ పేజ్ అండి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. మరి ఇండెక్స్ దగ్గర నుండి ఒక్కొక్కటి మనం తెలుసుకుంటూ వద్దాం. సో మరి ఇది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేరు గద్య దర్పణ్ మరియు కథా సింధు. అంటే ఇందులో కావ్యాలే లేవండి, అన్ని గద్య భాగమే. సో గద్య దర్పణ్ కథా సింధు, గద్య భాగానికి సంబంధించిన కొన్ని పాఠాలు, కథలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఇది నాన్ డీటెయిల్ కథా సింధు అనేటటువంటిది. మరి సో ఇందులో ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇండెక్స్ తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అనుక్రమణిక ఇండెక్స్ సెమిస్టర్ 1కి సంబంధించిందండి. మరి ఇందులో గద్య దర్పణ్లో మొట్టమొదటి పాఠం చరిత్ర సంఘటన్. ఇది ఒక నిబంధ పాఠ అండి, బాబు గులాబ్రాయ్ గారు రాశారు. ఓకేనండి. చరిత్ర, వేటి చరిత్ర, గులాబీల చరిత్ర అని గుర్తుపెట్టుకోండి. బజారుని దర్శించడం, ఇది కూడా నిబంధేనండి. ఇది జైనేంద్ర గారు రాశారు. జైనులు బజారుకి వెళ్ళారు, జైన దర్శన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, జైన దర్శన్. నెక్స్ట్ భాబీ, ఇది ఒక సంస్మరణాత్మక రేఖాచిత్రం అండి. భాబీ సంస్మరణాత్మక రేఖాచిత్ర అంటే మనకు పరిచయం ఉన్నటువంటి, గతంలో పరిచయం ఉన్న ఒక వ్యక్తిని గురించి తెలుసుకోవడం. సో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించి మన సంబంధం ఏమిటి అనేటటువంటిది గుర్తు చేసుకోవడం. భాబీ వదినకి సంబంధించినటువంటి సంస్మరణ చేసుకోవడం. మహాదేవి వర్మ, సో సంస్మరణాలు ఎక్కువగా రాయడంలో దిట్ట మహాదేవి వర్మ అండి. సో భాబీ కౌన్ హై, మహాదేవి వర్మ. సో భారత్ మే సంస్కృతి సంగం నిబంధ పాఠ అండి. भारत में संस्कृति संबंध संगम निबंध पाठ रामधारी सिंह दिनकर. सो संस्कृति संगम रामधारी, భారతదేశంలో సంస్కృతినంతా సంగమం చేసింది రామ్ధారి. నెక్స్ట్ రాష్ట్ర కా స్వరూప్ నిబంధ అండి. రాష్ట్ర కా స్వరూప్ నిబంధ వాసుదేవ శరణ్ అగ్రవాల్. సో రాష్ట్ర కా స్వరూప్ ఇదొక నిబంధ పాఠ, వాసుదేవ శరణ్ అగ్రవాల్ అండి. సో మొత్తం ఓవరాల్గా గద్య దర్పణలో 5 లెసన్స్ ఉన్నాయి. చరిత్ర, గులాబీ చరిత్ర, బజారుకు వెళ్ళింది జైనులు, భాబీ మహాదేవి వర్మ, భారతదేశానికి దేవుడు రామధారి, రాష్ట్ర కా స్వరూప్ వాసుదేవ శరణ్ అగ్రవాల్ అండి. నెక్స్ట్ కథా సింధులో అన్ని కహానీనే ఉన్నాయండి. సద్గతి, ఇదొక కహానీ, ప్రేమ్చంద్. సద్గతి, ప్రేమ ఉంటే మంచి గతి, సద్గతి, प्रेम से ही सदगति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा याद रखिए. छोटा जादूगर, चिन्न मायगाडू, छोटा जादूगर कहानी जय शंकर प्रसाद. सो जय शंकर में जादू है जय शंकर में, जय जादू जय, ऐसा याद रखिए. सच का सौदा, निजम యొక్క భవనం, सच का सौदा कहानी सुदर्शन. सौदा राइमिंग के अनुसार याद रखने का प्रयास कीजिए. सच का सौदा सुदर्शन. प्रायश्चित कहानी भगवती शरण वर्మ. ఇది ఒకప్పుడు 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నేను చదివేటప్పుడు ఉండేదండి. సో ప్రాయశ్చిత్ అని ఒక పిల్లిని చంపేయడం జరుగుతుంది, పిల్లిని కొడుతుంది ఒక అమ్మాయి. సో ఆ ఇంటికి కొత్తగా వచ్చిన నవవధువు, దానికోసమని పూజారి నానా రకాల తిప్పలు పెట్టేస్తాడు. అది చివరికి అది లేచి పరిగెడుతుంది. प्रायश्चित कहानी भगवती शरण वर्मा. सो प्रायश्चित किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए प्रायश्चित, भगवान के सामने प्रायश्चित कर लेते हैं. प्रायश्चित भगवान, भगवती चरणों, भगवान के चरणों के पास प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ऐसा याद रखिए. भगवान के चरणों के सामने. चीफ की दावत, चीफ को बुलाकर दावत देना, हमारे चीफ को, हमारे हेड ऑफिसर को बुलाकर दावत देना. भीष्म साहनी. सो हमारी चीफ कौन है? भीष्म है. हमारे चीफ कौन है? भीष्म है, भीष्म साहनी.
और परिशिष्ट अंत में कुछ व्याकरण के अंश भी दिए गए हैं। सो और एक बार दोहराएंगे, प्रेम से ही सदगति प्राप्त कर सकते हैं। जादू जयशंकर, सौदा सुदर्शन, प्रायश्चित भगवान के चरणों के सामने, चीफ की दावत भीष्म चीफ है, परिशिष्ट में व्याकरण। और गद्य दर्पण के अंतर्गत सेमेस्टर 2 में, यहाँ तक सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया, और आइए सेमेस्टर 2 के अंतर्गत गद्य दर्पण में धरती का स्वर्ग, धरती का స్వర్గ యాత్ర का వర్ణన్, కాశ్మీరం గురించండి। కాశ్మీరం అనేటటువంటిది భూమి మీద ఉన్న స్వర్గం లాంటిది కాబట్టి కాశ్మీర్ గురించి రాశారు। విష్ణు ప్రభాకర్, విష్ణు ప్రభాకర్, धरती का स्वर्ग। सो विष्णु जहाँ रहता है वही स्वर्ग है, విష్ణు जहाँ रहता है वही स्वर्ग है, యాత్రా వర్ణన్। తాయి, ఇది కూడా గతంలో 9th క్లాస్లో ఉండేదండి। సో తాయి పెద్దమ్మ పాట, విశ్వంబరనాథి శర్మ కౌశిక్ అండి। విశ్వమంతా తాయి పెద్దమ్మలే। సో విశ్వమ్మ పెద్దమ్మ తన యొక్క చిన్న కొడుకైనటువంటి మనోహర్ అనేటటువంటి వాడిని మొదట్లో వ్యతిరేకిస్తుంది, తర్వాత వాడే ప్రాణం అయిపోతాడు, పిట్టగోడ నుండి జారి పడతాడు। అప్పటి నుండి వాది మనోహర్ అంటే చాలా ఇష్టాన్ని పెంచుకుంటుంది। సో రాజనీతి కా బంటవారా, వ్యంగ్య అండి, రాజకీయాలపైన వ్యంగ్యంగా రాయబడింది। రాజనీతి కా బంటవారా హరిశంకర్ పరసాయి, హరిశంకర్ పరసాయి ముఖ్యంగా వ్యంగ్య నిబంధాలకి ఫేమస్। సో రాజనీతి హరిశంకర్ పరసాయి, राजनीति हरिशंकर। स्वामी विवेकानंद, ये तो एक जीवनी है। वंशीधर विद्यालंकार, विद्या के लिए अलंकार है विवेकानंदा, विवेकानंदा। सो जो विद्यालंकार बनता है उसमें विवेक रहता है, विद्यालंकार बनता है उसमें विवेक रहता है। नेक्स्ट पर्यावरण और हम, ये तो निबंध है, राजीव गर्ग, राजीव गर्ग। सो पर्यावरण में राजीव गांधी रहता है। ओके, सो ये तो गद्य दर्पण के अंतर्गत सेमेस्टर 2 में। और सेमेस्टर 2 का कथा सिंधु देखेंगे। सेमेस्टर 2 में कथा सिंधु कौन कौन सी कहानियां है, हंसू या रो, नव्वाला एडवाला, विनायकराव विद्यालंकार, विनायकराव विद्यालंकार, विनायकराव विद्यालंकार, हंसू या रो। सो विनायकुణ్ణి మనం పూజిస్తే हंसते हैं, सो पूजा करने से हंसते हैं, नहीं तो रोते हैं। हंसू या रो, विनायकराव विद्यालंकार। वापसी, उषा प्रियम वदा, उषा प्रियम वदा, उषा प्रियम वदा। उषा होते ही हम काम के लिए वापस जाते हैं। सो वापसी उषा, उषा उषा అంటే వేకోజామ అవగానే సో అందరం కూడా వాపసి మన పనులలోకి వాపస్ వెళ్ళిపోతాం। वापसी विषा प्रियम वदा। सेवा, ममता कालिया, जिसके दिल में ममता रहती है वो सेवा करते हैं। ममता सेवा, सेवा ममता। और सिलिया कहानी, सिलिया सुशीला टकभौरे, सिलिया सुशीला टकभौरे, सिलिया सुशीला टकभौरे। गदल कहानी है, ये रांगेय राघव का गदल, गदल रांगेय राघव का गदल है। सो रांगेय राघव। और परिशिष्ट में यहाँ पर भी कुछ व्याकरण के अंश दिए गए हैं। सो ये तो है सो कथा सिंधु। इसके अंतर्गत हर एक पाठ के लेखक का नाम और हर एक कहानी का कहानीकार का नाम याद रखने की आवश्यकता है। साथ साथ गद्य दर्पण के अंतर्गत हर एक पाठ की गद्य विधा, किस विधा में लिखा गया है, यह भी याद करने का एक अंश है। सो एक एक पाठ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सो सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 में गद्य दर्पण के अंतर्गत, सेमेस्टर 1 में गद्य दर्पण के अंतर्गत चरित्र संगठन बाबू गुलाब राय का निबंध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चरित्र संगठन, चरित्र संगठन के अंतर्गत बाबू गुलाब राय का पाठ है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक एक ओके। सो यहाँ पर अनुक्रमणिका कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला पाठ अनुक्रमणिका के बाद पहला पाठ में आएंगे। यहाँ तक सो कितने मिनट, 9 मिनट हो गए हैं। सो पहला पाठ है चरित्र संगठन। ओके, चरित्र संगठन देखें।
सो TSJL एग्जाम डिग्री फर्स्ट ईयर कंटेंट BA वालों के लिए, BSc वालों के लिए, BCom वालों के लिए और BBA वालों के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के रूप में पढ़ने वालों के लिए और सेमेस्टर 1 और 2 के लिए। सो भाग 1 के अंतर्गत गद्य दर्पण में सेमेस्टर 1 में सबसे पहले सेम 1 देखेंगे। इसमें भाग 1 है गद्य दर्पण। इसमें पहला पाठ है चरित्र संगठन, पाठ नंबर 1 चरित्र संगठन। ये तो निबंध पाठ है। इसका लेखक है श्री बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बाबू गुलाब राय। सो एक एक पॉइंट के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, गुलाब राय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो मैं तो आवश्यक विवरण ही बताता हूँ, बाकी विवरणों को सिर्फ ओरल सी बताता हूँ, रिटन सी नहीं लिखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें ओरल और रिटन दोनों रूपों में बताने का प्रयास करूंगा। सो अन्य विवरण को सिर्फ ओरल के रूप में बताता हूं, एक बार सुन के सो छोड़ दीजिए। सो इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में हुआ था। सो 1888 में कहां पर? यूपी के इटावा नगर में हुआ था, यूपी के इटावा नगर में। सो आरंभिक शिक्षा मैनपुरी नामक शहर में हुई थी। शिक्षा मैनपुरी में हुई थी। सो इनके लिए जो भाषाएं आती है, सो इनका विद्वत्ता जिन जिन भाषाओं में है, सो इनकी भाषाएं कौन कौन सी भाषाओं की प्रज्ञता है इनके पास? उर्दू, फारसी और संस्कृत, इन तीनों भाषा के ज्ञाता थे बाबू गुलाब राय जी ने। इनकी उपाधियां डिग्रीలు ఏమేం డిగ్రీలు చేశాడు? आगरा कॉलेज से BA प्राप्त किया था और उसके बाद दर्शन शास्त्र में MA प्राप्त किया था। ఫిలాసఫీలో ఈయన MA చదివాడు। సో మరి ఆగ్రా యూనివర్సిటీలో BA చదివాడు। దీని తర్వాత LLB కూడా చదివాడు। మరి తర్వాత 4 वर्ष तक छतरपुर महाराज को दर्शन सिखाया। सो 4 वर्ष तक छतरपुर महाराज को दर्शन सिखाया। ఈయన కూడా ఫిలాసఫీ నేర్పించాడు छतरपुर महाराज के। मरे आगरा से BA और दर्शन में MA LLB, उर्दू फारसी संस्कृत के ज्ञाता, मैनपुरी में शिक्षा, यूपी इटावा में जन्म लिया था 1888 में। छतरपुर महाराज के लिए दर्शन सिखाया था और उसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया था। सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य। और इनकी मासिक पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट मासिक पत्रिका है। इनकी मासिक पत्रिका है साहित्य संदेश किनका है? एस गुलाब राय जी का। ये तो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका का नाम साहित्य संदेश। और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से D.Litt भी प्राप्त किया था। D.Litt आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। इसी आगरा विश्वविद्यालय से BA भी मिली थी, BA डिग्री। और इनकी अंत में इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। सो जन्म कब माना जाता है? 88 और मृत्यु 1963 में हुई थी। और इनकी विशेषता आदर्श अध्यापक के रूप में, संपादक के रूप में, विचारक के रूप में, समीक्षक के रूप में, इन सारे रूपों में
हमारे साहित्य में इनकी छाप मिलती है। आदर्श अध्यापक, संपादक, विचारक और समीक्षक। और इन्होंने जो विषय पर लिखा था सो ये सारे इन विषयों से संबंधित है। साहित्य पर कई बातें, कई किताबें, और धर्म पर, दर्शन पर, और उसके साथ साथ मनोविज्ञान पर, तर्कशास्त्र पर और नीति पर। सो इन विषयों को लेकर अपनी रचनाएं की थी। किन्होंने? डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्क, नीति पर अनेक रचनाएं लिखी थी। और प्रसिद्ध रचनाएं, इनमें से प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बिट, बहुत लोगों के पास रहता है और प्रकाशन के रूप में और परचेजिंग के रूप में बहुत ज्यादा किताबें सेल होने वाले किताबें हैं, हिंदी लिटरेचर से संबंधित है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। और इसके बाद हिंदी काव्य विमर्श। गुलाब जिसके लिए देते हैं वे विमर्श नहीं करते हैं, विमर्श। और सुबोध, गुलाब देने से सुबोध होता है, विमर्श नहीं करते हैं। और उसके बाद काव्य रूप, गुलाब की बगीचे में काव्य रूप समझ लेना चाहिए, गुलाब के बगीचे में काव्य रूप समझ लेना चाहिए, काव्य के रूप। और उसके बाद है साहित्य और समीक्षा, गुलाब देकर समीक्षा के लिए बुलानी चाहिए। साहित्य और समीक्षा, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी काव्य का सुबोध इतिहास, और इसके साथ साथ है तर्कशास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र का इतिहास अंडी, तर्कशास्त्र का काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र का इतिहास। और इसके बाद की रचना तर्कशास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र का इतिहास, तर्कशास्त्र का इतिहास। और अंतिम है पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, और तर्कशास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र का इतिहास, साहित्य और भूमिका, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये सारी रचनाएं गुलाब राय जी के हैं। और उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना भी एक है, वो बहुत बढ़िया है। सो इसे हम रेड कलर में लिखने का प्रयास करेंगे। भारत का सांस्कृतिक इतिहास, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। ये तो संस्कृति से संबंधित उल्लेखनीय रचना है। सो ये सारी गुलाब राय जी की रचनाएं हैं। और इसके बाद गुलाब राय ख्याति निबंध लेखन के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। निबंध लेखन में सो एक देश भर की ख्याति मिली है। सो गुलाब राय जी के लिए ख्याति किसमें मिली थी? ख्याति निबंध लेखन में मिली थी, निबंध लेखन में मिली थी। किसमें? निबंध लेखन में। सो इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह को देखेंगे, निबंध संग्रह जानेंगे। नंबर 1 देखिए, एक एक के आधार पर, एक एक के क्रम में। सो प्रबंध प्रभाकर गुलाब देकर प्रबंध प्रभाकर को जगाना चाहिए। जीवन
जीवन पथ में जाते समय गुलाब के फूल दिखाई दिए। जीवन पथ। और मेरे निबंध, मेरे निबंध किसका है, किसकी रचना है, गुलाब राय जी का। और इसके बाद अध्ययन और आस्वाद। अध्ययन, अध्ययन और आस्वाद। अध्ययन किया और आस्वाद किया, किसका, गुलाब का। गुलाब का अध्ययन किया देखकर और उसका आस्वाद भी किया। और फिर निराशा क्यों, गुलाब देते समय फिर निराशा क्यों। सो जब भी हम गुलाब देते हैं निराशा को भगाने के लिए। सो फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, गुलाब देकर फिर निराशा क्यों कहना चाहिए। किसकी रचना है, गुलाब राय जी की रचना। और मैत्री धर्म, दोनों के बीच जब मैत्री धर्म रहता है तब आपस में गुलाब बांट लेते हैं। सो मैत्री धर्म, मैत्री धर्म का चिन्ह या प्रतीक है गुलाब देना। और ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब में सभी लोग गुलाब पहन के आते हैं। सो शर्ट में गुलाब पहन के आते हैं, ऐसा याद रखिए। ठलुआ क्लब में सभी लोग गुलाब पहन के आते हैं। और मेरी असफलताएं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट, मेरी असफलताएं। जब भी असफल होते हैं तब गुलाब देकर उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। मेरी असफलताएं, जब भी गुलाब राय मेरी असफलताओं के बारे में लिखता है तब गुलाब देते हैं। और मन की बात, मन की बात, जब भी एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से अपनी मन की बात बताते समय गुलाब देता है, इसलिए मन की बात बताते समय गुलाब देना चाहिए गुलाब राय, गुलाब देना चाहिए गुलाब राय। और इसके बाद है कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे। गुलाब कई प्रकार के होते हैं, कुछ उथले होते हैं, कुछ गहरे रंग के होते हैं। कुछ उथले गुलाब, कुछ गहरे गुलाब रहते हैं। और इसके बाद है सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, एक बार दोहराइए, सांस्कृतिक जीवन। कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से निबंध है, सांस्कृतिक जीवन, कुछ उथले कुछ गहरे, मन की बात करते समय, मन की बात बोलते समय। नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम भी है, रेडियो कार्यक्रम मन की बात है। नरेंद्र मोदी जी को मन की बात करते समय गुलाब देना चाहिए, गुलाब राय। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ठल्लुआ क्लब में गुलाब धारण करके आते हैं। मैत्री धर्म का प्रतीक है गुलाब देना। फिर निराशा क्यों, गुलाब देकर कहते हैं। अध्ययन और आस्वाद किया, किसका, गुलाब का। मेरे निबंध गुलाब के बारे में। जीवन पथ में जाते समय गुलाब भी फेंकना चाहिए। और प्रबंध प्रभाकर गुलाब राय। ओके, ये तो गुलाब राय जी के निबंध है। और इनकी निबंधों की विशेषता क्या है। जो भी निबंध लिखा है, इन निबंधों की विशेषता या विशिष्टता कौन सी है। वैयक्तिकता और आत्मपरक निबंध है। ये सारे वैयक्तिक और आत्मपरक निबंध। यानी कि अपने बारे में सोचकर, अपने मनमाने ढंग से, अपनी इच्छानुसार, अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी व्यक्तिगत संदेशों को, अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को इन निबंधों में फंसा कर, इन निबंधों में निहित करके लिखता है। इसलिए वैयक्तिक और आत्मपरक निबंध लिखने में पटु कौन है, यस, बाबू गुलाब राय। और इसके साथ साथ विचारात्मक भी होते हैं। तर्क करने के लिए, विचार करने के लिए विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। उन पर कुछ समय तक सोचना पड़ता है। ये सारी निबंध पढ़ने के बाद कुछ विचार हमारे मन में, अपने दिमाग में उत्पन्न होते हैं। इसलिए विचारात्मक और कुछ निबंध भावात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं। यानी कि मन में नई नई भावनाएं, नए नए संवेद, नए नए ये उद्वेगों का उत्पत्ति होती है। विचारों और विचारात्मक और भावात्मक निबंध है गुलाब राय जी के। और इनकी भाषा कैसी होती है,
गुलाब राय जी की भाषा कैसी होती है, शुद्ध खड़ी बोली में लिखता है। सो ये तो शुद्ध खड़ी बोली में लिखने वाला निबंधकार है, खड़ी बोली में लिखने वाला निबंधकार। कहीं कहीं संस्कृत तत्सम शब्द उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग करता है, कहीं कहीं संस्कृत तत्सम शब्द और इसके साथ साथ अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग करता है गुलाब राय जी। और इनकी रचना शैली कैसी होती है, किस शैली में लिखता है? रचना शैली व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेशन स्टाइल व्याख्यात्मक होता है। किसी छोटी विषय को लेकर लंबे रूप में खींचने का प्रयास, एनालिसिस करने का, विवरण देने का, व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता है। और साथ साथ आलोचनात्मक भी होता है। सो क्रिटिसिज्म करने के लिए लायक होते हैं, आलोचनात्मक शैली में भी लिखता है। इनकी शैली व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक, सो एक्सप्लेनेटिव అండ్ క్రిటిక్ స్టైల్లో రాస్తాడండి। అంతేకాకుండా సో विचारों की स्पष्टता रहती है, गुंजायमान में सो और अस्तव्यस्तता में सो और उसके उधेड़-बुन में फंसा देने की रचनाएं नहीं लिखेंगे। सो विचारों में क्लैरिटी, विचारों की स्पष्टता रहती है। सो किन की रचनाओं में? इस गुलाब राय जी की रचनाओं में, क्योंकि वाक्यों में सरलता रहने के कारण ऐसी विचारों की स्पष्टता पनपती है, आती है। सो अभिव्यक्ति की प्रभावात्मकता भी रहती है। जो भी अभिव्यक्त करेगा प्रभावात्मक ढंग से, चोट करने जैसे, स्पर्श करने जैसे प्रभावात्मक रूप में लिखने का प्रयास करेगा। अभिव्यक्ति की प्रभावात्मकता रहती है, कुछ समय तक प्रभावित होकर सो घूमने लगता है। सो ये है सो बाबू गुलाब राय जी के बारे में। और प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? इस नाम है चरित्र संगठन। क्या है? चरित्र संगठन। और इस पाठ में कौन कौन से विषयों के बारे में चर्चा हुई? सो चरित्र के बारे में, క్యారెక్టర్ के बारे में, గుణము గురించి చర్చించడం జరిగింది। ओकेనండి। सो इसके कारण ही, चरित्र के कारण ही समाज में विशेष स्थान मिलता है। सो ये व्यक्ति कहना, किसी भी व्यक्ति को अपनी चरित्र के कारण, अपनी चाल चलन के कारण, अपनी व्यक्तित्व के कारण ही समाज में विशेष स्थान। सो चरित्र के कारण ही समाज में विशेष स्थान मिलता है। किसके कारण? चरित्र के कारण। ये तो चरित्र ही एक मानदंड है। सो व्यक्तियों को अंदाजा लगाने का, सो व्यक्तियों को अनुमान लगाने का, व्यक्तियों को परखने का एक मानदंड है चरित्र। सो यही एक मानदंड है, व्यक्तियों को आदरणीय बनाता है। सो जिसके पास चरित्र रहता है वह व्यक्ति आदरणीय बनाता है चरित्र। व्यक्ति को आदरणीय बनाने वाला कौन सा है? यह चरित्र। यह आदि से अंत तक स्थायी रूप में रहता है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक स्थिर रूप में रहता है। यह स्थायी तत्व है, बीच में नहीं बदलता। सो अनेक दुर्घटनाओं के कारण, संघटनाओं के कारण, अनुभवों के कारण नहीं बदलता है। सो धन के कारण और उसके साथ साथ पद के कारण, विचार के कारण नहीं बदलता, क्योंकि ये तीनों अस्थाई है, लेकिन चरित्र स्थायी है। धन आती है जाती है, पद आता है और पद विच्युत हो जाते हैं, और विचार आते हैं और जाते हैं। ये तीनों अस्थाई तत्व है, लेकिन चरित्र होता है स्थायी तत्व। सो इससे सदा आदर का पात्र बनते हैं। चरित्र के कारण सदा आदर का पात्र बनते हैं। सदा आदर का पात्र बनने में सहायता देने वाले तत्व कौन सा है? यस, चरित्र है।
सो आदर्श चरित्र का निर्माण कैसा करना चाहिए? सो एक व्यक्ति अपने आदर्श चरित्र का निर्माण कैसा करना चाहिए? नंबर 1, विनय के साथ रहना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए और धैर्य के साथ जीवन यापन करना चाहिए और सहकारिता का गुण होनी चाहिए और सत्य बोलते रहना चाहिए, सत्य वचन का पालन करना चाहिए, अंत में कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो इन चार गुणों के कारण आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य, कर्तव्य। सो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आदर्श चरित्र के गुण विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य, कर्तव्य। चरित्र स्थायी तत्व है, धन पद विचार अस्थायी तत्व है। यही एक मानदंड के समान है, समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकते हैं। किसके कारण? चरित्र के कारण। और अब हम ये गुलाब राय जी के बारे में जानेंगे। 1888 में यूपी में इटावा में इसका जन्म हुआ था। शिक्षा मैनपुरी में, उर्दू, फारसी, संस्कृत के ज्ञाता। आगरा से BA दर्शन शास्त्र में MA LLB भी प्राप्त किया था। 4 वर्ष तक छतरपुर महाराज को दर्शन सिखाया। सेंट जॉन्स में अध्यापन कार्य किया था। मासिक पत्रिका है साहित्य संदेश और D.Litt भी किया था आगरा विश्वविद्यालय से। और मृत्यु 1963 में हुई थी। विषय साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्क, नीति को लेकर अपने निबंध लिखते थे। प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुबोध इतिहास, विमर्श गुलाब, काव्य के रूप गुलाब, साहित्य और समीक्षा गुलाब, काव्य शास्त्र का इतिहास गुलाब, तर्क शास्त्र का इतिहास गुलाब, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास गुलाब। इनकी प्रसिद्ध रचना है भारत का सांस्कृतिक इतिहास, 8वीं रचना। और गुलाब राय जी इनकी ख्याति का एकमात्र कारण निबंध लेखन। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म निभाने के लिए हम गुलाब देते हैं, ठलुआ क्लब में गुलाब धारण, असफलताओं से बचने के लिए गुलाब, मन की बात बोलते समय गुलाब देते हैं, कुछ उतले कुछ कहरे गुलाब, सांस्कृतिक जीवन गुलाब। इनके निबंध विषय वैयक्तिक और आत्मपरिक होते हैं। विचारात्मक, भावात्मक भी होता है। और भाषा शुद्ध, कड़ी बोली, सांस्कृतिक, तत्सम और अरबी फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया था। और शैली, इनकी शैली है व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक शैली में लिखता था। विचारों की स्पष्टता, वाक्यों की सरलता भी रहती है, अभिव्यक्ति की प्रधानता रहती है। चरित्र का विशेष स्थान समाज में होता है। यह एक मानदंड है, स्थायी होता है। धन पद विचार अस्थायी होते हैं। सदा आदर का पात्र बनता है चरित्रवान लोग। आदर्श चरित्र का निर्माण करने के लिए विनय, आदरता के उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य, कर्तव्य आदि गुण होने चाहिए। यहाँ तक तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 2 बाजार दर्शन यहाँ पर ही देखेंगे। पार्ट नंबर 2 बाजार दर्शन। बाजार दर्शन यह किस विधा में? यस, देखें किस विधा में लिखा गया पाठ है? बाजार दर्शन। एक बार देखेंगे किस विधा में लिखा गया पाठ है। निबंध विधा में ही लिखा गया पाठ। इसका लेकर है जैनेन्द्र कुमार। आप तो इस पाठ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।